नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल मैवरिक गौरव मोटिवेशन पे। आज का जो वीडियो है वो एक स्पीच वीडियो है और मोटिवेशनल वीडियो है, जो कि एक्स डीजीपी ऑफ बिहार श्री गुप्तेश्वर पांडे सर का है। तो वो आज मैं अपलोड कर रहा हूं। ये वीडियो उनका एक यूनिवर्सिटी में बोला गया हुआ वीडियो है, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं भी पढ़ाई करता हूँ। तो काफी मोटिवेशनल बातें बताई हैं उन्होंने, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए ये वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। Mr. Vasant Kumar Singh, Professor C.V. Raman University. Kisley, who has been instrumental to bring me here. Actually, the credit goes to him. Few days back, I think 10-15 days back, I don't remember the exact date, I was passing through this road, we had gone to some village to meet someone. And on the way, we were discussing something about my USA and UK program. He requested me, there is a good university, C.V. Raman University. Please come and interact with students there, young brilliant minds. And fortunately, I was available here for a few days. I was staying in Sonpur. So very casually, I was not very willing also, but casually I said, yes, I'll come. And yesterday I told everything is set, you have to come. So I am here. And it's a privilege for me to interact with young, brilliant minds here. A good number of students, boys and girls. I am very, very happy. It's a very rare occasion for me to, it's my privilege. See friends, subject is very confusing. Yes, we are talking about stress management because in UK, this time during my last visit, I had gone to Scotland, then UK, and I had programs at several different places in different cities in Scotland and England. Glasgow, Edinburgh, Birmingham, Manchester, Bath, Bristol, then London. Therefrom I went to Australia, Sydney, Melbourne, and from Australia I went to Fiji. Very beautiful, small, mini India. So I had a Ram Katha there. So after a long time, very long stay in fact. I stayed there out of India for more than 3 months. So I came. In fact, I was discussing about this because most of the places wherever I visited, I spoke on stress management. So he requested, why don't you speak to young students of C.V. Raman University on this particular subject. But here see, stress management is there, personality development is there, and at the below, if you can see the poster from here, there, one more thing is included. What is that? Personality development. Vyaktitva dharma. So, I am really confused whether I should speak on stress management or personality development, and what is one more? I am forgetting. Stress management and personality development. Okay, now friends, to tell me first, I am talking to, I want that, I won't be speaking for more than half an hour, I guess. Half an hour, because I am in a hurry, I have to go to Delhi, I have to take a flight from Patna today.
So be honest to me. I know you know, all of you know, understand Hindi, you know English, there's no doubt about it. But in which language you are more comfortable? I'm asking this question to the students, to girls and young boys. In which language you are more comfortable? You will enjoy more if I speak in English or should I speak in Hindi? Are you sure? Yes. Okay. हिंदी तो ठीक से बुझा जाएगी। हिंदी हमने के मातृभाषा, अंग्रेजी उन्हें तो मजबूरी में बोले पड़े। Because under compulsion, because you have to interact with Britishers or American nationals, तो आपको वो नहीं समझते हैं तो बोलना पड़ता है। But I love हिंदी। चलो मिला जुला के थोड़ा मिला जुला के चलेगा। वाह, बोलिए जय श्रीमन्नारायण भगवान की। देखो, दो तीन बातें समझ, बहुत संक्षेप। हम सिर्फ ये बताएंगे पहले, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, गर्ल्स, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर टीचर्स। दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। And if you really give your mind, if you really listen carefully to what I am saying, it is going to be a life-changing session for you. I am sure. Your perception will change, your personality will change, and all your actions, reactions, or response to different situations depends on your personality. The way you perceive, accordingly you react. Very simple example. Very simple example. Suppose there is a betel shop, pan ki dukaan koi, and 3 persons are standing over there. You don't know who are they. One is a self-realized saint. Another person is chief of police, say for example DGP of the state. The third person is a notorious criminal. They don't know each other. They are standing in front of a betel shop. And a fourth person, he also doesn't know who are they. And he comes. And without any apparent reason, he hits Mr. A, slaps Mr. B, and abuses Mr. C. Now, or say for example, this fourth person who comes, he will be brought to the police station, and what happens in police station, अच्छी से कुटाई, then he will be sent to jail. This is how a police officer will react. And Mr. C, who is a notorious criminal of that area, if he is hit, his perception is different, so his reaction is also going to be very different from these two. He will take out his pistol and hit on his head. उतने बात की, एक मुस्कुरा कर चल देता है, एक पकड़कर कुटाई करता है, जेल भेजता है, और एक आदमी उसी गलती के लिए, एक थप्पड़ के लिए गोली भी मार देता है। Now the question is, why these 3 persons are reacting in 3 different ways? Why their action is different, their reaction is different, their response is different? What could be the reason behind this?
पान की दुकान पर 3 आदमी खड़ा है, एक डीजीपी है, एक साधु है और एक खूंखार वहां का अपराधी है। कोई आदमी आए, तीनों को एक एक तमाचा लगा दे तो साधु तो मुस्कुराकर, सच में साधु है, छोड़ो अज्ञानी है, चला गया। पुलिस अफसर कहेगा हमको इसने थप्पड़ लगा दिया, बांध के ले आएगा, थाना में खूब कुटवाएगा, जो धारा नहीं लगने लायक वो भी लगवाएगा, उसके बाद इतना कूट देगा कि जब जब पुरवैया बहेगा तब तक उनकी सर्दी में जेल भी भेजेगा। तीसरा जो नोटोरियस क्रिमिनल है वो सोचेगा कि बाप रे, हमको चौक चौराहे पर इसने तमाचा लगा दिया, कल से तो मेरी रंगदारी खत्म, मेरी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। तो एक तमाचा के बदले वो गोली भी मार सकता है। ये क्यों होता है? और सुनो, एक ही सिचुएशन में आप इतने आदमी हो, एक ही सिचुएशन में अलग अलग आप रिएक्शन होता है कि नहीं? घर में भी देखे होंगे, अगल बगल पड़ोस में एक ही सिचुएशन में कोई रोने लगता है, कोई गाने लगता है, कोई मुस्कुराने लगता है, किसी को कोई असर ही नहीं पड़ता। दाल में सब्जी में मिर्ची हो गई, दाल में नमक ज्यादा हो गया, कोई खाना छोड़ करके उठ कर चल देता है, कोई थाली ही उठा के पटक के फोड़ देता है। ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, we all are part of the same supreme consciousness. We are all souls. हम तो शास्त्र की बात थोड़ा बोलेंगे ही, लेकिन आपको फायदा हो। Irrespective of your caste, creed, sex, religion, nationality, whoever you are, wherever you are, we all are part of the same supreme consciousness. We all are children of the God. Whether you are Hindu or Muslim or Sikh or Christian, American, African, Australian, Japanese, Indian, whatever. Whether a man or woman, whatever. We all are children of God. Obviously, what I mean to say is God is one. भगवान 10 थोड़ा हो सकता है कि हिंदू का भगवान अलग, मुसलमान का भगवान अलग, सिख का भगवान अलग, क्रिश्चियन का भगवान अलग, औरतों का भगवान अलग, पुरुषों का भगवान अलग, हमारा भगवान अलग, तुम्हारा भगवान अलग। तो भारत में तो हजारों जातियां और जातियां हैं, पूरी दुनिया का तो छोड़ो। अगर ऐसा होगा कि सब जातियों के भगवान अलग अलग होंगे, सब धर्मों के भगवान अलग अलग होंगे, तो भगवान की संख्या हजारों में हो जाएगी। रोज भगवान लोगों में आपस में मारा मारी होगी, हम लोगों को बाहर में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, भगवान तो एक ही हो सकता है। जिसने हमें बनाया, तुम्हें बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, हवा बनाई, पानी बनाई, जंगल बनाया, पहाड़ बनाया, पर्वत बनाया, पृथ्वी को बनाया, वो एक ही है। उसको जानने का तरीका, समझने का तरीका, पूजने का तरीका ये अलग हो सकता है। तो हम सब एक ही ईश्वर के संतान होते हुए भी एक नहीं है। वी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। It's true that we are part of the same supreme consciousness. ये सही है, लेकिन इसके बाद भी हम एक नहीं, ये भी सही है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहां कॉन्सेप्ट है कि हमारा पुनर्जन्म, करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम जो कर्म करते आ रहे हैं, लॉ ऑफ कर्मा, करोड़ों करोड़ों जन्मों से अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए। अब उसको हम दर्शन की भाषा में नहीं बोल रहे हैं कि तमोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म, सतोगुणी कर्म, सीधा भाषा में समझो, कुछ अच्छा किए, कुछ गलत किए। तो जो भी हम काम करते हैं, ऐसे सुन, हम चाहते हैं हिंदी बोलना इसलिए कि तुमको बात अच्छे से समझ, जो भी तुम करते हो, जो भी तुम बोलते हो, जो भी तुम सोचते हो, गहराई से एक बात को पकड़ो, जो भी तुम बोलते हो, जो तुम देखते हो, जो तुम सोचते हो और जो तुम करते हो, ये सब कर्म है। ये सब कर्म है। सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, देखना भी कर्म है,
और हाथ पैर इंद्रियों से जो करते हैं, अच्छा भी बुरा भी, चोरी करें तो, दान करें तो, हत्या करें तो, बलात्कार करें तो, यज्ञ करें तो, साधना करें तो, तपस्या करें तो, ये सब कर्म है। अब रहस्य की बातें समझने की कोशिश करो। थोड़ा अरुचिकर हो सकता है, लेकिन बड़े ज्ञान की बात है। लाइफ में कोई बताएगा नहीं, एक बात ये समझ में आ गई तो तुमको जीवन में बड़ा आदमी बनने से कोई रोक नहीं सकता। माई का लाली ये सब कर्म है। तो ये सारे कर्मों की एक स्मृति बनती है, मेमोरी बनती है। वो मेमोरी हमारे चित्त में संचित होती है, स्टोर हो जाती है। हमारा जो चित्त है अनलिमिटेड जीबी का, ये थोड़ा टेक्निकल आप लोगों की भाषा में 256 जीबी का मोबाइल, 556 जीबी का मोबाइल, ये अनलिमिटेड जीबी का ये चिप इसमें है लगा हुआ। तो जो भी हम अच्छा या बुरा करेंगे उसकी मेमोरी, उसकी स्मृति हमारे चित्त में जाकर के स्टोर हो जाएगी। अच्छा, तो स्मृति मेमोरी जाकर चित्त में स्टोर हो गई तो क्या हो गया? उसी को हम संस्कार करते हैं। मतलब क्या हुआ? संस्कार हमारे कर्मों से बनता है। जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, जैसा सुनोगे, जैसा देखोगे, जैसा करोगे, उसकी स्मृति चित्त में संचित होगी, उसी से हमारा संस्कार बनता है और संस्कार से ही हमारा स्वभाव बनता है। और ये संस्कार से ही हमारे भीतर से विचार आते हैं। तो जैसा विचार आएगा वैसा ही कर्म होगा, फिर जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार संस्कार बनेगा, फिर संस्कार से वैसा ही विचार बनेगा, फिर विचार से वैसा ही कर्म बनेगा। ये चक्र चलते हैं। तो कर्मों का कर्ता कौन है? मन है। जो भी आप कर रहे हो कर्मों का कर्ता आपका मन है, ये हाथ पैर नहीं। मन आदेश देता है इंद्रियों को, इंद्रियां उसका पालन करती हैं। इसी हाथ से पिस्तौल चलाया, गोली किसी की हत्या कर दी। ये हत्या करने वाला कौन है? हाथ नहीं है, मन है। चोरी इसी हाथ से किया, चोरी करने वाला हाथ नहीं है, कौन है? डकैती किया, बलात्कार किया, यज्ञ किया, हवन किया, पूजा किया, कर्मों का कर्ता कौन है? ये मन एक दिन में नहीं बनता है, एक जन्म में भी नहीं बनता है, ये करोड़ों करोड़ों जन्मों में बना। अच्छा देखो बेटियों, तुम भी सुनो ध्यान से और आप लोग भी सुनो। आप देखिएगा बचपन से ही कोई आदमी दुष्ट होता है, हर गांव में एक तो मिल जाए। कोई गांव टोला मोहल्ला नहीं मिले, किसी की प्रसिद्धि हो, किसी का नाम हो, किसी का जस हो, उसको अच्छे नहीं लगता। उस सबकी आलोचना ही करते चलेगा, सब में दोष निकालते चलेगा, सबसे झगड़ा करते चलेगा, सबकी निंदा करते चलेगा। अच्छा काम कोई होगा उसको अच्छा लगेगा ही नहीं। वो ऐसे ही होता है, स्वाभाविक से ऐसे होता है। ऐसे आदमी भी मिलेंगे जो बचपन से साधु हैं, वो माला नहीं चलाते, वो पूजा करते हुए दिखाई नहीं देते, वैसा गेरुआ पहनकर घूमते हुए नहीं दिखाते, उनके स्वभाव में साधता है। तो किसी की निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, अपना रोटी दाल खाते हैं, अपना काम करते हैं, शांति से रहते हैं। ऐसे लोग भी एक ही माँ बाप के 4 बेटे 4 बेटियां या 3 भाई बहन हैं, इसमें से बहुत है जो अपने माँ बाप के 3 होंगे, 2 बहन होगी, 1 भाई होगा, 2 भाई होगा, 1 बहन होगी, 3 बहनें होंगी, चाहे 3 भाई होंगे, 3 जरूर होंगे।
अब बताओ, तीनों का स्वभाव एक तरह का होता है क्या? हो सकता है क्या? देखो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन मैनेजमेंट एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू व्हाई दिस इंडियन मैनेजमेंट, देयर इज नथिंग लाइक इंडियन मैनेजमेंट। यू कैन क्वेश्चन, यू कैन डिबेट ऑन दिस, बट आई एम टेलिंग यू, ये मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वेस्ट का, वो उसमें कहते हैं कि एक ही परिवेश में अगर किसी व्यक्ति को पाल पोस करके बड़ा किया जाए तो उसकी पर्सनालिटी, दिस इज रिगार्डिंग पर्सनालिटी मैनेजमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो भी हो, तो एक ही तरह की उनकी सोच होगी, एक ही तरह का व्यक्तित्व हो जाएगा। दिस इज टोटली फॉल्स। वो कहते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड, मतलब दीज आर द फैक्टर्स इन शेपिंग योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी के निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में ये सब फैक्टर्स हैं। Your family background, your social background, your cultural background, your academic background, your religious background, your political background, your academic background, your geographical background। आप इंग्लैंड में पैदा हुए हो कि इंडिया में पैदा हुए, इसका भी आपके व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। आप साइंस के विद्यार्थी रहे हैं कि कला के विद्यार्थी रहे हैं, साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है आपकी पर्सनालिटी। आपका पारिवारिक, आपकी पृष्ठभूमि कैसी है, सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि कैसी है, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि कैसी है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इस सब मिलकर के आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लेकिन ये सब आउटर फैक्टर्स है। ध्यान से हम इसलिए कर रहे हैं अपने शिक्षक भाइयों को सुनने के लिए, दी थिंग्स आर नॉट रिटन इन योर बुक व्हिच यू हैव रेड मैनेजमेंट में। ये सब बाह्य कारण है, आउटर फैक्टर्स है, इनका प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी स्कूल में बच्चे को डाल दोगे तो वो अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा, लेकिन जैसे कॉन्वेंट से पढ़ कर जाएगा तो पिताजी अब नहीं कहेगा, और डैडी पापा बोलना शुरू करेगा, क्योंकि भाषा के साथ भाषा का संस्कार है। गुड मॉर्निंग पापा बोलेगा, गुड मॉर्निंग डैडी बोलेगा। तो ये चीजें हैं, इन चीजों का प्रभाव व्यक्ति के निर्माण पर, व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ता है। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा है वेस्ट में नहीं पढ़ाया जाता। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है उसमें आपके पूर्व जन्म के संस्कार जो आपके चित्त में संचित हैं, जिसके बारे में आपको पता नहीं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। क्योंकि सीधे देखो, एक ही परिवार में अगर 4 भाई पैदा हुए एक माँ बाप से, तो फैमिली बैकग्राउंड एक ही है, सोशल बैकग्राउंड एक ही है, कल्चरल बैकग्राउंड एक ही है, रिलीजियस बैकग्राउंड एक ही है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक ही है, एक ही गांव एक ही देश में पैदा हुए थे, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड भी एक ही है, सब तो एक ही है, और एकेडमिक बैकग्राउंड भी एक ही है, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही टीचर पढ़ाया। तो फिर चारों 4 तरह के क्यों हो गए? एक बहुत क्रोधी हो गया, और एकदम एक बहुत उदंड हो गया, एक विनम्र हो गया, उसमें से एक डाकू बन गया, रंगदार बन गया, तो एक साधु बन गया, एक को म्यूजिक में इंटरेस्ट हो गया, एक को गणित में इंटरेस्ट हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो, तो क्यों होता है? इसका क्या कारण? अगर केवल व्यक्तित्व का निर्माण फैमिली बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड और एकेडमिक बैकग्राउंड के कारण होगा, तो सारा बैकग्राउंड वही है, क्योंकि चारों सगे भाई हैं कि माँ बाप के बेटे हैं, लेकिन एक ही में से कोई कुख्यात अपराधी हो जाता जन्मजात, और एक स्वभाव से ही साधु हो जाता है। एक को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, एक को गणित के इंटरेस्ट है, एक को गोभी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, एक को दही खाने का मन करता है, एक दूसरे को दही पसंद नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार उसके चित्त में संचित हैं। तो ये मन जो हमारा बना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ये हम दिख रहे हैं, आप सबको दिख रहे हैं हम? बोलो बोलो, हम गोरे हैं कि काले हैं? वाह, थैंक यू, थैंक यू। और हम हैंडसम हैं कि अगली हैं? वाह, थैंक यू। मेरे नाम पर ताली बजाओ।
try to understand this. Somebody is thin, somebody is fat, somebody is long, somebody is short, somebody is white, somebody is black, whatever. This is our outer personality. This is not our real personality. ये हमारा बाहरी व्यक्तित्व है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है। ये हमारा बाहरी पर्सनालिटी है। अच्छा, जितने पैंट शर्ट पहन कर बच्चे बैठे हैं, भीतर गंजी बनियान भी होगा पक्का। जिसको नहीं है वो हाथ उठाए, मतलब सबने पहना है। और उसके ऊपर से कोट स्वेटर भी कोई पहने होंगे। उसी तरह हमारे सोल ने, आत्मा ने 2 कपड़े पहने हैं। आत्मा के ऊपर पहला जो आवरण है उसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। क्या बोलते हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब उसके ऊपर जो आत्मा ने आवरण पहना है उसको कहते हैं शरीर। ये ऊपर का शरीर जो है ये पंचभूत से बना हुआ है। क्षितिजल, पावक, गगन, समीर है। मिट्टी है, जल है, वायु है, पानी है, सब इसमें। और जब ये शरीर जल जाता है या नष्ट हो जाता है तो 5 तत्व अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। जल जल में, मिट्टी में, वायु में, अग्नि में इत्यादि। तो ये जो दिखाई पड़ता है वो स्थूल शरीर है। ये हमारा असली व्यक्तित्व नहीं है। ऊपर से खूब सुंदर देखने वाली लड़की या लड़का भीतर से बहुत कुरूप। ऊपर से बहुत अच्छी नहीं दिखने वाली लड़की या लड़का भीतर से बहुत ज्यादा सुंदर हो। मैंने कई अपने मित्रों को देखा है। मैं अपनी बात बताऊं, दिल की बात बोलूं कि नहीं बोलूं? ये बात यहां से बाहर कहीं नहीं बोलोगे ना। अपनी भी बात बताऊंगा तो बाहर नहीं बोलोगे ना। हाँ, ये बोलना नहीं। अपने कई मित्रों को मैं जानता हूं IAS IPS में जिनकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। अरे कुछ हमारे मित्र हैं उनकी पत्नियां तो कटरीना कैफ से भी ज्यादा खूबसूरत। अब ये सब बोलना पड़ेगा तभी आपका मन लगेगा, क्योंकि देख रहे थे कि बच्चा सो रहा, हम जगाना भी जानते हैं। अच्छा, कटरीना कैफ अगर मिल जाए तो कौन कौन शादी करना चाहेगा? हाथ उठाओ, शर्माओ मत, हाथ उठाओ। अरे एक ही आदमी हाथ उठाया, भाई अपना मुंह दिखाओ, हम भी वाह। अच्छा, एक बात बताओ, कोई ऐसी दुनिया में लड़की बताओ जो ये चाहती नहीं हो कि हमको सुंदर पति मिले? कोई है बेटी? हमारे हाथ उठाए। कोई ऐसा बेटा हो जो सोचता हो कि हमको बहुत क्रूर पत्नी मिले? कोई है? हर लड़का चाहता है हमको सुंदर स्त्री मिले। हर बेटी हमारी चाहती है कि हमको सुंदर पति मिले। लेकिन सुंदरता जिसको खोज रहे हो, मैं अपने कई मित्रों को जानता हूं जिनकी पत्नियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन वो काली माई है, रंगचंडी है। बड़े बड़े पदों पर बैठे बैठे हाकिम लोगों को मैंने देखा है कि एक बार अगर पत्नी आंख ऐसे टेढ़ा कर दे उनको गस आ जाती है, गिर जाते हैं बेहोश। ये सच है। हमारे बसंत बाबू की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। हमारे मित्र है, इनको मैं जानता हूं, उनकी पत्नी में जब डांटती है तो उनको ये सब बात घर में नहीं बताना। ये नकली खूबसूरती है। गोरा होना, चेहरा चमकना और बहुत सुंदर लगना, ये खूबसूरती
खूबसूरती नहीं है। असली खूबसूरती है जिसका मन सुंदर, जिसका दिल सुंदर, वो सुंदर। ये खूबसूरती जीवन भर नहीं रहेगी, आज है कल नहीं रहेगी, बुढ़ापा आएगा ढल जाएगी। इसका आकर्षण बड़ा टेम्पररी है, लेकिन अंतःकरण को आपने खूबसूरत अगर बना लिया, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, यहीं पर आप महसूस कर, स्वर्ग और कहीं नहीं, यही है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं खूब अच्छी अंग्रेजी बोलने आ जाए, टाई पहनने आ जाए, सूट पहनने आ जाए। ये सॉफ्ट स्किल्स ना आपके मैनेजमेंट में क्या पढ़ाया जाता है? सॉफ्ट स्किल में क्या, बात करने की कला होनी चाहिए, लोगों को लुभाने की कला हो चाहिए, आंख में आंख डाल करके बात करो, अंग्रेजी बढ़िया बोलना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ठीक है, ये हो, कोई दिक्कत नहीं है, संसार में इसकी जरूरत है। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारे अंतःकरण में हमारी चेतना का स्तर बहुत नीचे है। शास्त्र की बात भी सुन लो, हंसी मजाक के बीच में चेतना में बहुत गिरावट आई है। प्रकृति में 3 गुण है, तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है। तो तमोगुण की प्रधानता चेतना में हो गई है, रजोगुण की प्रधानता चेतना में हो गई है। तो वैसा ही हमारा मन हो गया, वैसी ही हमारी बुद्धि हो गई, तो वैसा ही हमारा निर्णय हो गया। इसीलिए संसार में इतना अत्याचार, अन्याय, शोषण, और जुल्म और भ्रष्टाचार और ये है। इसीलिए समाज में जात की लड़ाई, मजहब की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, आपस में नफरत। तमोगुण को कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। मतलब ये समझो बुद्धि के 3 स्तर हैं, स्टेज। अगर सबसे निचला स्तर है उसको कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। क्या बोलते हैं? इसको तमोगुण बोलेंगे। अगर चेतना का स्तर इसी लेवल पर आपका है, कैसे जानेंगे गुरुजी कि हमारी चेतना का स्तर इसी लेवल पर है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में? हम बताते हैं, शास्त्र कहता है आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक अगर बुद्धि है तो यही है मोड ऑफ इग्नोरेंस। आहार की जरूरत सबको है कि नहीं? बिल्कुल है। निद्रा की सबको है। भय सबको है कि नहीं? है भी है। ब्रह्मा के 84 लाख योनियों में एक भी प्राणी नहीं, मनुष्य को छोड़ो, कीट पतंग, सांप, बिच्छू, शुकर, कुकर भी जिसको मृत्यु का भय न हो। कोई मरना नहीं चाहता। मच्छर भी यहां बैठेगा ना, हाथ करोगे उसमें एक रडार होता है, उसको पता चल जाता है कि खतरा है, तो टूट कर भागेगा। सांप को मारना चाहोगे वो भी जान बचाने की कोशिश करेगा, बिच्छू को कहोगे वो भी जान। नाली का कीड़ा भी मरना नहीं चाहता। मैथुन माने प्रजा, संतान उत्पन्न करना। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस यही तक कर बुद्धि है, मन है, यही सोचना है, तो आप समझो मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो। मोड ऑफ इग्नोरेंस में जब आदमी रहता है तो बुद्धि का स्वरूप होता है, उसको कहते हैं मूढ़ चित्त। उसमें ज्ञान का प्रवेश नहीं है। वो आहार के लिए, निद्रा के लिए और भय से निवृत्ति के लिए, मैथुन के लिए कुछ भी करेगा। कुछ भी माने कुछ भी। अत्याचार, शोषण, अन्याय, जुल्म, धन जुटाने के लिए चोरी, डकैती, मर्डर, हत्याकार, मैथुन के लिए बलात्कार, कुछ भी करे, क्योंकि मोड ऑफ इग्नोरेंस में। तो पशु में और इसमें कोई फर्क नहीं है। मनुष्य दिखेगा लेकिन भीतर से पशु। ऊपर से खूब सुंदर है, सलमान खान की तरह या कटरीना कैफ की तरह, लेकिन भीतर से वो पशु ही है। चेतना के स्तर पर वो स्त्री हो या पुरुष हो, पशु है।
इससे ऊपर का लेवल है, उसको कहते हैं मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ पैशन भी बोलते हैं, मोड ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। शास्त्र की भाषा में, दर्शन की भाषा में बोलते हैं रजोगुण। उसमें जो बुद्धि का स्वरूप होता है उसको कहते हैं विक्षिप्त चित्त। आहार निद्रा भय मैथुन यहां भी चाहिए, इसकी जरूरत है, भय वहां भी नहीं जाएगा, आहार की, मैथुन की, निद्रा की वहां भी जरूरत होगी, लेकिन इतने से संतुष्टि नहीं होगी। जो मोड ऑफ पैशन में है, मोड ऑफ एक्शन में है, रजोगुण के उत्कर्ष में है, उसमें अनंत कामनाएं, अनंत इच्छाएं, दुनिया में मुझे लोग जान जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा जयकारा हो जाए, दूसरे पर शासन करने की प्रवृत्ति, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, कोठी हो जाए, पद हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, पूरे दुनिया में मेरा डंका बज जाए, इस तरह का स्वभाव हो जाता है, ऐसा मन हो जाता है, तो उसको कहते हैं विक्षिप्त चित्त। विक्षिप्त चित्त में भी मन शांत नहीं होता, मन का कंसंट्रेशन नहीं होता, न सुख है न शांति है, मन बेचैन रहे। तो मोड ऑफ एक्शन में भी अधिकांश लोग हैं। और अंतिम जो होता है वो होता है सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस बोलते हैं। मोड ऑफ गुडनेस के स्तर पर जब हमारी चेतना पहुंचती है, कैसे पहुंचेगी उसका अलग विज्ञान है। पहले के संस्कार से, गुरु की कृपा से, जप से, धप से, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, अच्छा देखो, अच्छे लोगों की संगत में रहो, तो धीरे 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 ये चेतना का स्तर मोड ऑफ गुडनेस में पहुंचता है। यहां पहुंचेगा तो अनंत कामनाएं, अनंत वासनाएं वो शांत हो जाती हैं। तब आदमी के मन में जिज्ञासा होती है कि हम आखिर हैं कौन, किस लिए आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मोड ऑफ गुडनेस में जो व्यक्ति का चित्त होता है निरुद्ध चित्त, उसको बोलते हैं निरुद्ध चित्त। यहीं पर ज्ञान का प्रवेश है। देखो गहरी बात बोल रहा हूं, विद्यार्थी जीवन में मोड ऑफ इग्नोरेंस से ऊपर उठना है। विद्यार्थी जीवन में मोड ऑफ पैशन रहेगा, रहना चाहिए, नहीं तो एक्शन नहीं होगा, लेकिन मन को कंसंट्रेट करने के लिए मोड ऑफ गुडनेस में जाना पड़ेगा। मोड ऑफ गुडनेस में जाने का मतलब यही है कि माइंड का जो डिस्ट्रैक्शन है, इधर भी लगा, उधर भी लगा, इधर भी लगा, उधर भी लगा, वो सबको समेट करके अपने गोल पर फोकस करना पड़ेगा। देखो, अंतःकरण चतुष्टय में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। एक एक लाइन में समझ लो क्या है। इतनी ही बात समझ गए तो आपके जीवन में सफलता आपका कदम छूने। मन है, बुद्धि है। 84 लाख जीवों में भगवान ने केवल मनुष्य को बुद्धि दिया है, जानवरों में भी है, सीमित है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक भोजन के लिए यत्न कर सकते हैं, सोने के लिए अपना घोंसला बना सकते हैं, चूहा भी बिल बना लेता है, चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, उतनी बुद्धि है उनको। मैथुन माने बच्चा उत्पन्न कर लेते हैं, मौत का भय तो उनको भी है, लेकिन इससे अधिक बुद्धि नहीं है। OMA करने का, PhD करने का, कलेक्टर बनने का या मोक्ष प्राप्त करने का ये सोच भी नहीं सकते, उनके अंदर ये बुद्धि नहीं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन बुद्धि केवल और केवल 84 लाख योनियों में आपको मिली, मनुष्य को मिली केवल। मन सबके पास, 84 लाख योनियों में सबके पास। तो मन और बुद्धि को समझ लो, उसको माइंड और इंटेलेक्ट। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है कि नहीं है? बोलो बोलो।
ये क्यों लिखा गया? कहीं सुना है कि गधा एक बुद्धिजीवी प्राणी है, बाघ एक बुद्धिजीवी प्राणी है, हाथी एक बुद्धिजीवी प्राणी है, बैल चूहा एक बुद्धिजीवी प्राणी है, सांप एक बुद्धिजीवी प्राणी है। प्राणी तो भी है, लेकिन ये बुद्धिजीवी विशेषण लगता है केवल मनुष्य के पहले। 84 लाख ज्योतियों में केवल मनुष्य के पहले ही बुद्धिजीवी विशेषण लगता है, और किसी का क्यों? बुद्धि पर जो जीता है, बुद्धि के अनुसार जो जीता है वो बुद्धिजीवी। बुद्धि केवल मनुष्य को ही है, उनकी बुद्धि बड़ी सीमित है, वही आहार निद्रा भय मैथुन तक। इस बुद्धि से ही जीवन में उत्कर्ष होता है, और बुद्धि के कारण जीवन में पतन भी होता है, अपकर्ष भी होता है। बस बुद्धि अगर संभल गई तो उत्कर्ष माने सक्सेस, बुद्धि बिगड़ गई तो पतन। बुद्धि बिगड़े नहीं, इसलिए मन को नियंत्रित करना बड़ा जरूरी है। मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि। जब हम आए मनुष्य में तो भगवान ने बिल्कुल नहीं देखा कि किस जाति का है, किस मजहब का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इमामन है, यादव है, कुशवाहा है, कुर्मी है, छत्री है, साउथ इंडियन, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, जापानी है, ऑस्ट्रेलियन, कुछ नहीं। जिस दिन मनुष्य योनि में हमारा अवतार हुआ, उसी दिन 2 सूक्ष्म यंत्र हमारे अंदर फिट करके भगवान ने भेजा। 2 subtle machines are fitted inside us। 2 सूक्ष्म यंत्र फिट करके भेजा। एक का नाम है माइंड, एक का नाम है इंटेलेक्ट। एक का नाम है, बोलो, एक का नाम है, बस इसी को समझ लो, आज का लेक्चर खत्म। इसी में स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसी में पर्सनालिटी मैनेजमेंट, सब कुछ है। एक का नाम है मन, एक का नाम है बुद्धि। ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए दिया गया, मन इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों को नियंत्रण करने का काम मन जब आदेश देगा कि पैदल चलो, यूनिवर्सिटी चलना है, तब पैर उठेगा। मन कहेगा नहीं जाना है, पैर उठेगा, बोलो। तो इंद्रियों का स्वामी मन के आदेश का पालन करता है, और मन का स्वामी बुद्धि। तो इंद्रियों को गवर्न करने के लिए एक यंत्र हमारे अंदर भगवान ने दिया। इंद्रियां बाहर से कर्म करती देखती हैं, सारे पाप भी और पुण्य जो भी करते हैं, लेकिन इंद्रियां जो हैं काम करती हैं मन के आदेश पर। तो इंद्रियों का गवर्नर जो है, कंट्रोल करने वाला, वो है मन। अब मन को भी अगर मन बौरा गया तब क्या होगा? थाना में थानेदार है, उसके ऊपर इंस्पेक्टर, दरोगा, एसपी होता है ना। मन अगर बौरा गया तब क्या होगा? मन बिगड़ गया तब क्या होगा? मन में भोगों के संस्कार है ना, 84 लाख भोग योनियों में रहते रहते जीवन भर, तो कई कई जन्मों में, अनंत जन्मों में, करोड़ों जन्मों में केवल हमने भोग ही तो किया है। तो मन में सहज आकर्षण है भोग के प्रति, गिरने के लिए 24 घंटे तैयार है, एकदम मौका चाहिए। वो गिरने के लिए हमेशा ही तैयार है, हमेशा उसका सहज स्वभाव ही है गिरना चाहता। इस मन को संभालने के लिए ईश्वर ने एक दूसरा यंत्र हमारे अंदर फिट करके दिया, उसका नाम है इंटेलेक्ट, मन बुद्धि। मन जब इधर पागलपन करे, इसको खींचो। तो मन जो करे वो हम नहीं कर सकते, मन जो बोले वो हम नहीं कर सकते। कर सकते हो? बोलो ना, बोलो। आजकल कौन हीरोइन चल रही बहुत पॉपुलर, नाम बताओ मुझे, तो सिनेमा में देखे 40 साल। हाँ, कौन? ऐसा आज्ञा भट्ट, ये सब इसका नाम जानते हैं। कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाओ, शर्माओ मत, हाथ उठाओ। कौन नहीं आज्ञा भट्ट को नहीं जानते? छोड़ो, वो पानी में डूब मत। अरे उठाओ हाथ। अच्छा, इतने लोग।
आलिया आलिया, अच्छा आलिया भट्ट को जानते हो? अच्छा, सबसे आपकी प्रिय अभिनेत्री कौन है? बेटों से पूछना, बोलो। हाउस डिवाइडेड। सबसे प्रिय अभिनेता कौन है बेटियों? बात हाथ उठाओ। नहीं, बोलो ना। अच्छा, आलिया भट्ट कोई ऐसा है जिसको अच्छी नहीं लगती है? बताओ। तुमको नहीं लगती? 3 आदमी को, बाकी सबको अच्छी लगती है। और आपका मन करे आलिया भट्ट से विवाह करना है, कर लोगे? जो मन करे वो नहीं कर सकते। मन पर शासन है, धर्म की मर्यादा है, शास्त्र की मर्यादा है। जिस देश में रहते हो वहां की कानून की मर्यादा है, और जिस समाज में रहते हो उस समाज की भी मर्यादा है। जो मन करे वो नहीं कर सकते। इशारों में बात समझो। मन तुम्हारी कितनी गंदी गंदी बातें सोचता है, उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते, उसको कर भी नहीं सकते। समाज की मर्यादा है, कानून की मर्यादा है, शास्त्र की मर्यादा है। धर्म को हम शास्त्र नहीं मानते, चलो मत मानो। वेद नहीं मानते, चलो मत मानो। जिस देश में रहते हो, कोई कह सकता नास्तिक है, हम नहीं मानते हैं आपका वेद शास्त्र, सब गप है, ठीक है, मत मानो। लेकिन नास्तिक हो तो, नास्तिक हो तो, हिंदू हो तो, मुसलमान हो तो, क्रिश्चियन हो तो, बौद्ध हो तो, कोई भी जात समाज के हो, देश का कानून तो मानना पड़ेगा ना। जिस समाज में रहते हो उस समाज की मान्यताओं को, परंपराओं को मानना पड़ेगा ना। जिस दिन तुम मनुष्य हो गए उसी दिन इतने सारे बंधन में तुम आ गए, इतनी मर्यादाएं हो गई। भोग जोनी में थे तो कोई मर्यादा नहीं थी, सांप काट देता है आदमी मर जाता है, बाघ मार कर खा जाता है, बाघ को कोई पाप पुण्य नहीं होता, सांप को कोई पाप पुण्य नहीं होता। लेकिन जैसे मनुष्य बन कर गए तो शास्त्र आकर खड़े हो गए, ये हत्या करेगा पाप, बलात्कार करेगा पाप, चोरी करेगा पाप, यज्ञ करेगा, दान करेगा पुण्य। ये पाप पुण्य की अवधारणा, विधि निषेध की अवधारणा जैसे मनुष्य हुए वैसे आ गए। आप कह सकते हैं नहीं मानते, ये पोंगापंथी है, झूठ है, तो मत मानो। ये तो नहीं कह सकते कि जिस देश में रहेंगे वहां कानून, किसी की हत्या करोगे तो आजीवन कारावास होगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम देश का कानून नहीं मानेंगे। किसी ने आपकी मां को, बूढ़ी है 80, 84, 85 साल की, बिना कारण आकर के जलील किया, गाली दिया, उसको लातों से मारा, गंदी गंदी गालियां दी। आपका मन करता है इसका खून करो। मन क्या करता है? बोलो। लेकिन बुद्धि क्या करती है? अगर खून कर दिया तो हमको फांसी हो जाए। अगर बुद्धि आपकी मजबूत हुई, मन को कंट्रोल कर ली, तो आप अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेंगे, इमोशन को नियंत्रित कर लेंगे। इस अपमान के बाद भी खून करने से बच जाएंगे, फांसी पर लटकने से बच जाएंगे। लेकिन बुद्धि कमजोर पड़ गई, मन बलवान हो गया, तो आप खून कर देंगे। होते हैं कि नहीं इससे खून? बोलो, होते हैं कि नहीं? 4 दिन से बेटी आपको भोजन नहीं मिला है, भूख से एकदम प्राण छटपटा रहे हैं। हम चांदी के कटोरे में लबालब भर करके रसमलाई आपके पास लेकर आए, बेटी खा लो। मन क्या करेगा? बोलो, अरे बोलो ना, बोलो बेटा। 4 दिन से प्राण जा रहा है, भूखे छटपटा रहे हैं, हम रसमलाई लबालब चांदी के कटोरे में भर के लाओ, बेटा खा लो। तो मन क्या कहता है? तुरंत आपने हाथ लगाया रसमलाई में खाने के लिए, किसी ने कान में बोल दिया इसमें साइनाइड जहर है, ठीक पर रखते ही मर जाओ। अब क्या करोगे? बोलो। मन ने कहा भूख से मर रहे हो, खाओ। आपने रसमलाई उठाया, किसी ने कान में सूचना दी जहर है, खाते ही जीभ पर रखते ही मर जाओगे। बुद्धि ने तुरंत निर्णय लिया, 4 दिन में नहीं मरे तो 4 दिन और जी सकते हैं, लेकिन इसको फेंक 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 फेंक। बुद्धि ने तुरंत मन को कहा कि एकदम खबरदार, नहीं खाना है। मन ने इंद्रियों का रुक लिया और रसमलाई फेंक दोगे कि नहीं? देखो,
मन बिगड़ गया है, बिगड़ रहा है। दारू पिएगा जो बच्चा, मन बिगड़ेगा। स्मैक पिएगा, मन बिगड़ेगा। हीरोइन पिएगा, मन बिगड़ेगा। गांजा शराब भांग पिएगा, मन बिगड़ेगा। गलत संगत में रहेगा, मन बिगड़ेगा। गलत चीज देखेगा, मन बिगड़ेगा। मन बिगड़ने के हजार रास्ते हैं। सबसे बड़ा खतरनाक एक यंत्र आ गया हम लोग के पास, जो हमारे बेटों बेटियों को बिगाड़ रहा है। उसका नाम क्या है? हाय हाय। आप लोग शर्म क्या नहीं हो भाई? एक बार खोल दो तो ऐसे ऐसे दृश्य, गाने, भजन, उसमें मतलब साधु बनना है तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। मोबाइल ले लो, ऐसा ऐसा सत्संग उसमें है। बताओ, विद्यार्थी जीवन में सोशल मीडिया अगर चलाओगे, बुरा मत मानना। साइंस है, इट्स a boon for you, it's a bane for you. You can make yourself, you can mar yourself. ये नोट करना। You don't get what you desire. You get only what you deserve. जो चाहते वो नहीं मिलेगा, जो डिजर्व करते वही मिलेगा। बस पता ना, आदमी डिजर्व कैसे करता है? कठिन मेहनत से। जीवन में कुछ करना है, माइंड का डिस्ट्रैक्शन को रोको। ये ऊर्जा, बबलिंग एनर्जी है आपके अंदर, कुछ भी कर सकते हो। कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर को तबीयत से उछालो ले जाओ। कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो। कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो। और तुम्हारी औकात का, तुम्हारी ऊर्जा का, तुम्हारी ताकत का अंदाजा कोई क्या लगाएगा? तुम चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। इतनी ऊर्जा आपके अंदर है, लेकिन ये ऊर्जा बिखरी हुई है इधर उधर। अब मर्यादा है साधु कि हम इतना नहीं बोलते हैं, बोलने में। आजकल के नौजवान बेटियां और बेटे, उनका आधा समय तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में जाता है। ये भारतीय संस्कृति नहीं, ये बात खराब। अरे हम उस ऋषियों के संतान हैं, उस भारत माता के सपूत हैं जहां विवाहिता स्त्री के अलावे हर दुनिया की स्त्री या तो हमारी बेटी होती है, बहन होती है और या मां होती है। इसके अलावा कुछ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की अवधारणा, इसका कॉन्सेप्ट सनातन में नहीं है, भारत में नहीं है। ये लिविंग रिलेशनशिप की अवधारणा भारत में नहीं है, ये सनातन में नहीं है। मेरे कहने का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आपके जीवन की बात है। जिस दिन तुम अपने साथ पढ़ने वाली बेटियों को अपनी बहन मान लोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसके अंदाजा करना बड़ा मुश्किल है। ये परिवर्तन कैसे आएगा? और बहनें, बेटियां जिस दिन तुमको अपना भाई मान ले, कैसे आएगा? तुम्हारी आधी ऊर्जा जो बेकार नष्ट हो रही है वो थम जाएगी, उसका अपने लक्ष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल पर फेसबुकिंग मत करो। फेसबुकिंग करवा तो करते रहिए बगू। फेसबुकिंग करना बंद करो, यूट्यूब चलाना बंद करो, और पता ना क्या कर में बाहर जाते इंस्टाग्राम, ये सब बंद करो। ये टाइम नहीं है। एक बार अपने लाइफ में एस्टैब्लिश हो जाओ। ये सब मौज मस्ती करने के फिर भी दिन है, कर लेना। अभी अगर आपने अपनी ऊर्जा को इन बातों में अगर गंवाया, फिर भी इंटरनेट की जरूरत है, आपके पढ़ाई में जरूरत है, तो काम का काम करिए।
लेकिन अगर आधा घंटा भी रोज टाइम आपका सोशल मीडिया में जाता है, उतना आपका बैंक बैलेंस कम होता है, आपका भविष्य में उतना अंधेरा छाता है। 2 घंटा रोज जा रहा है तो समझो कि 2 घंटा काला हो रहा है आपका फ्यूचर। 4 घंटा जा रहा है तो काला, उससे ज्यादा जा रहा है तो आप भी गए, पक्का ही जान। हम इसलिए नहीं आए हैं कि आपको खुश करने के लिए, ताली बजाने के लिए खूब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हमने व्यवहार की बात हम आपको सिखाएंगे। मोटिवेशन नीचे लिखो। मोटिवेशन क्या होता है? हम अपनी कहानी बताते हैं, वो अपने पढ़ी भी होगी, देख लो मोटिवेशन। किसान के घर में पैदा हुआ, बाप अनपढ़, मां अनपढ़, दादा अनपढ़, दादी अनपढ़, परदादा अनपढ़, परदादी अनपढ़। कई पीढ़ियों में मेरे खानदान में कोई स्कूल ही नहीं गया, मैं पहला आदमी था जो स्कूल गया। 8 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया, पहला क्लास में एडमिशन हुआ। गांव से 2 किलोमीटर पैदल कच्चा गंजी पहन करके जाते थे, बोरा बिछा कर जमीन पर बैठते थे, बर के पेड़ के नीचे गुरुजी बैठते खटिया पर और पहाड़ा पढ़ते थे, गिनती पढ़ते थे, 2 का 2 दूनी का 4। अब तो आप बेंच पर बैठते हो, डेस्क पर बैठते हो, बड़ी बिल्डिंग पढ़ते हो। किस्मत वाले हो, तुम्हारे बाप आपने ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा है, एयर कंडीशन में बैठ करके भाषण सुन रहे हो। हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ाई किए और बीए तक मुझे कुछ नहीं आता था। मैट्रिक में साइंस में फेल कर गए थे तो आर्ट्स में, मत बोल। साइंस आर्ट्स 8वीं क्लास से अलग हो जाता था, 11वां में बोर्ड होता था, 11वां में साइंस में फेल कर गए। आर्ट्स लेकर के इम्तिहान दिए तो पास कर गए, फेल था। किसी तरह से बीए पास किए तो मन में आ गया, जैसे हम आपको मोटिवेशनल भाषण सुना रहे हैं, वैसे ही हमको एक साधु से भेंट हो गई। साधु जी ने ऐसा मुझको चार्ज किया कि उसी दिन में हम संकल्प लिया कि अगर हम भी ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के अंश हैं, तो हम क्यों नहीं कुछ भी कर सकते। हमने तय किया, कोई बैकग्राउंड नहीं, अंग्रेजी तो बीए तक एक लाइन नहीं आती थी, जीएस कुछ नहीं आता था, लेकिन बीए के बाद हमने तय किया कि आईएएस आईपीएस से नीचे कोई नौकरी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, बस। 2 साल पढ़ाई की, हो गया, प्रदेश का डीजीपी भी बना। इसलिए क्यों? हमारे जैसा साधारण आदमी, बुद्धि से भी साधारण, धन से भी साधारण, परिवार से भी साधारण, कोई कोचिंग नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। 100 रुपया महीने में पटना में मिलता था, 60 रुपया मेस में लगता था, 1 रुपया 8 रुपया कॉलेज का फीस लगता था, 1 रुपया रोज मांगता था नाश्ता करने के लिए, तो उसमें 25 पैसे का समोसा लेते थे, 2 समोसा 50 पैसे का, 20 पैसे की चाय पीते थे, 20 पैसा बचा करके एक मिट्टी के चुक्कड़ में रखते थे आपातकाल में। कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आएगा केवल और केवल हार्डवर्क से। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है, उसका एक ही तरीका है, आत्मबल, आत्मविश्वास। करूंगा, करूंगी। और वो आत्मविश्वास नकली होगा, असली वाला आएगा केवल हार्डवर्क से। और हार्डवर्क तभी होगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं होगा तो हार्डवर्क नहीं होगा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड तभी होगा जब आपके दिमाग में भटकाव नहीं रहेगा। भटकाव लड़का का, लड़की का, मीडिया का, फोन का, जो भी हो। तो बच्चों, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। यही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कि मोड ऑफ इग्नोरेंस से हम मोड ऑफ गुडनेस में जाएं। हमारे अंदर क्षमा हो, दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, सद्भाव हो। डिस्ट्रक्शन बहुत है। आज की राजनीति की ऐसी दशा हो गई है कि हमें सिखाया जाता है दूसरे से नफरत करना, बांट बांट करके। तुम अगड़े हो, तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, तुम महादलित हो, तो उसमें ये हो तो तुम ये हो। ये धर्म नहीं करता, ये राजनीति करती है। लोगों को टुकड़े टुकड़ों में बांट करके एक दूसरे को लड़ाएंगे नहीं तो किसी की राजनीति चलेगी नहीं। कोई जात में पागल हो रहा है, कोई मजहब के नाम पर पागल हो रहा है, कोई अगड़े पिछड़े के नाम पर पागल हो रहा है, कोई दलित महादलित के नाम पर पागल हो रहा है। हम सब सोल हैं, सब ईश्वर के पुत्र हैं।
तो हम लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी होगी, कोई परमानेंट नहीं यहाँ, बस थोड़े दिन के मेहमान हैं, थोड़े दिन के लिए शरीर मिला है। या तो इसे भोग में गंवा दो, व्यसन में गंवा दो, दुर्व्यसन में गंवा दो, या इस जीवन से अपना और समाज का कुछ कल्याण करो। पर्सनालिटी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हम वेस्ट में बोलते, भारत में बहुत कम बोलते। वहां के लोग इतने तनाव में, इतने स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस इज बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड। जिसके जीवन में जितना बनावटीपन होगा उतना तनाव होगा, जो जितना सहज होगा। मनसा वचसा कर्म, मन में सोच रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ। सोच में, वाणी में, कर्म में जितना गैप होगा उतना ही जीवन में तनाव होगा। एकदम एक लाइन में सूत्र में बोल रहे हैं। और जिस दिन बोलने में, सोचने में, करने में दूरी कम होती जाएगी, तनाव कम होता जाएगा। और जिस दिन जो सोचते हैं वही बोलते हैं, वही करते हैं, इतना सहज, इतना निश्चल हो जाओगे कि कोई छुपने छुपाने वाली बात ही नहीं तुम्हारे जीवन में रहेगी, तो स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। और पाप पुण्य, हम जो बच्चों बेटों से बात करते हैं तो हम वो फिलॉसफी और शास्त्र की बात नहीं बताते, समझे में नहीं आए। एक लाइन की परिभाषा देते हैं कि जिस बात को तुमको दूसरे से छुपाना पड़े समझो कि पाप है। तुम्हें लगता है कि कोई जान न जाए, किसी को पता न चल जाए, राज ही रहे, तो जिस चीज को छुपाना पड़े समझो कि तुमसे पाप हो रहा है, गलती हो रही है, तुम्हारे जीवन में तनाव आएगा। और जब तुमको लगे कि मुझे छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं, समझ लो तुम्हारे जीवन में बहार आ गई, आनंद का मौसम आ गया। अब दुनिया में तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये कोई काम ही क्यों करना है जिसको छुपाना पड़ेगा? सीधी तो बात है। इतना ही तो पाप नहीं, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि मन तो पहले से बिगड़ा हुआ है। इस मन को संभालने के लिए अपनी बुद्धि को संभालना है। मन बहुत पावरफुल है। और देख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग बाय सम रोड, ए कैंडी स्टोर और स्वीट स्टोर, यू आर डायबिटिक, योर मेडिटेशन इज नॉट वर्किंग, योर शुगर लेवल इज वेरी हाई and you are very fond of sweets, you are passing through a sweet shop. What happens? Your mind says, because you love sweets, but you are diabetic. Your doctor says never ever eat sweets, no candy, no sweets, your medication is not working. If you keep taking sweets, you will die soon. And you are passing through a sweet shop. You are driving yourself. What happens? You are crazy for sweets. What your mind? What does your mind say? Let us go and have it. What you will do? Actually, it is a very difficult question to answer. If your mind is strong than your intellect, then you will go despite knowing that this is not good for my health, you will take it, you will have it. But if your intellect is stronger than your mind, and if your intellect is in a position to govern your mind, you control your mind, then your intellect will reason, take decision, and give command to your mind. Khabardar, my medication is not working. Doctor has told me not to take sweets. No, not to stop the car. Move. ये बात, मन हमेशा बिगाड़ेगा, मन हमेशा ललचाएगा, मन हमेशा गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगा। अपनी बुद्धि को संभालना है। अपने को जिसने संभाल लिया
अपने को संभालना ही पर्सनालिटी मैनेजमेंट है, अपने को संभालना ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है कि आप अपने इंटेलेक्ट को कितना एडवांस, कितना मजबूत, कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि मन को 24 घंटे वो खींच करके अपने काबू में रखता है और कहीं गिरने नहीं देगा। यही है व्यक्तित्व निर्माण, यही है व्यक्तित्व का विकास, और यही है स्ट्रेस मैनेजमेंट का टूल्स और टेक्नोलॉजी। जितने लोग, people, lot of motivational speakers are there all over the world. I'm not talking about India, in UK also, in US also, all in China also, in Korea also. I'm telling you, all over the world, they are spread all over the world, and they charge huge amount of money. If you invite them, any motivational speaker, and they charge you 20 lakhs, 30 lakhs, a huge amount. They will come here, they will deliver a lecture, they will interact with you, they will charge 20 lakhs, 25 lakhs, and they will go. All those people who speak on, give motivational lecture on stress management, it's very funny, but I am telling you, I know many, if not all. I know many, some of them are my friend also. The people who are known as best motivational speaker today, and who suggest you tools and technique to manage your stress, are most stressed people on the earth. खुद ही इतने तनाव में रहते हैं, तनाव प्रबंधन की टेक्निक सिखाते हैं पैसे लेकर। जीवन जब तक आध्यात्मिक नहीं बनाओगे, जब तक जीवन को सरल नहीं बनाओगे, जब तक जीवन को निष्कपट नहीं बनाओगे, भाषण देना अलग बात है, जीवन में आनंद का स्वाद नहीं मिलेगा। तनाव कम करना है तो जीवन को सरल बनाना होगा, हृदय को निष्कपट बनाना होगा। जब हृदय में दोहरा पाती खेलिएगा कि ये माँ नहीं जाने, बाबूजी नहीं जाने, ये वो नहीं जाने, ये टीचर नहीं जाने, इतना दांव पे छल कपट रखिएगा तो तनाव लाइफ में होगा। विद्यार्थी जीवन में तनाव मुक्त रहना जरूरी है, इसीलिए तनाव मुक्त नहीं रहोगे, कंसंट्रेशन नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा तो उतना डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क नहीं होगा, हार्ड वर्क नहीं होगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो सक्सेस लाइफ में मिलेगा नहीं। सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए तुम्हारे लिए बच्चों यही पर्सनालिटी मैनेजमेंट है, माइंड के डिस्ट्रक्शन को रोको। ये सोचो मेरे सामने ये 2-3 साल है ना, मेरे जीवन और मरण का समय है, उसके बाद मस्ती करने के लिए तो पूरी दुनिया। अरे एक बार अगर तुम फेल कर गए लाइफ में ना, कुत्ता नहीं पूछेगा, दुनिया किसी को पूछती नहीं है। और एक बार तुम सफल बन गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए ना, सारे लोग तुम्हारे पीछे पीछे। हारे हुए आदमी को लिए जीजा खोजना मुश्किल होता है, और जीते हुए आदमी के आगे पीछे साले इतने हो जाते हैं कि पहचानना मुश्किल है। ये समय तुम्हारा 2-3 साल इतना कीमती है बेटों और बेटियों, सुन लो। आज ये संकल्प लो कि मन को हम संभालेंगे, मन का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देंगे, मन की ऊर्जा को इधर उधर बर्बाद नहीं करेंगे। और आज से नए साल में शपथ ले लो कि अपनी पूरी ताकत को, पूरी ऊर्जा को हम झोंक देंगे अपने जीवन को बनाने में। जिस दिन ये संकल्प तुम्हारा ईमानदारी से ले लोगे तो पूरी प्रकृति, पूरी कायनात तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे संकल्प के साथ जुड़ जाती है। और कोई ऐसा काम है जो नहीं हो सकता। जब हमारे जैसे एकदम साधारण परिवार का, साधारण बुद्धि का बच्चा IAS IPS कर सकता है, तो मुझे आप में से एक बेटा बेटी पर पक्का भरोसा है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इनकी बातों से मोटिवेट हो पाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और आप ऐसे ही मोटिवेट होते रहे और लाइफ में कुछ अच्छा करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।